Good morning, student. Welcome on my class, that is a exercise 3.2, and today I will explain exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं सभी आज आपको एक्सप्लेन करा दी जाएंगे और एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हेयर द क्वेश्चन नंबर 1, here the question first is 12th question. Okay, तो 12th question is find the Pythagoras triplets of which the smallest number is 26. आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने हैं जिसके आपके पास नंबर जो स्टार्टिंग जो सबसे छोटा नंबर आपको गिवन है वो 26 यहाँ पर आपको गिवन है। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला होना चाहिए। हेयर you know about one formula that is related with the Pythagoras triplets. Here the first formula is 2x x square minus 1 and x square plus 1 if you have to find the Pythagoras triplets. जो आपके Pythagoras triplets होते हैं वो होते हैं 2x x square minus 1 and x square plus 1. तो here the smallest one is 2x एंड इससे ग्रेटेस्ट जो होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा और उससे ग्रेटेस्ट जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x इज इक्वल टू 26 बिकॉज द स्मॉलेस्ट इज 26. दैट्स वाई 2x इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 13, 26 अपॉन 2 देन x इज इक्वल टू 13. नाउ द सेकेंड साइड इज, अब x की वैल्यू आपके पास 13 आ चुकी है। नाउ यू हैव टू फाइंड द सेकेंड साइड ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो सेकेंड साइड यू हैव टू टेक एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन x की वैल्यू आपके पास है 13, यू हैव टू पुट हेयर 13 स्क्वायर माइनस 1, दैट्स मीन 169 माइनस 1 इज इक्वल टू 168. नाउ द हाइपरटेनियस दैट्स द लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड इज एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो x हेयर इज वैल्यू इज x, तो x की जगह हो गया 13 स्क्वायर प्लस 1, तो इज इक्वल टू 169 प्लस 1 इज इक्वल टू 170. तो दिस इज योर रिमेनिंग टू sides of Pythagoras triplets. Clear? Again I repeat, if you have to find any Pythagoras triplet side and you got one side, ये either be a smallest or either be a larger side, then you have to put the formula 2x x square minus 1 and x square plus 1. Here 2x is the smallest side and x square plus 1 is the largest side, and then after you have to put the value, either you have to smallest value take, then you have to equal 2x is equal to that smallest value, otherwise the longest value is given, then you have to put x square minus plus 1 is equal to that longest side that is given in the question. Okay, now you have to come on a question number 13. Question number 13 is find the of first 20 odd number. आपको फाइंड करने हैं फर्स्ट 20 odd numbers का सम. In the previous video I will tell you something कि if you have to find the sum of any number then you have to use the formula. Here we have to write the formula, see there in the 13 question we write a formula. काउंट ऑफ अ नंबर्स, काउंट्स ऑफ अ नंबर्स, नंबर्स को काउंट करिए और उसके ऊपर पावर लगा दीजिए डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, जो स्टार्टिंग के दो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस की पावर पे चली जाएगी, वो पावर बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आप जानते ही हैं कि फर्स्ट टू 20 ऑड नंबर इज 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39. These are the smallest 20 odd number. Odd number means that's number that is not divided by 2. जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो सभी नंबर ऑड होंगे, इसलिए 1 से लेकर के आपको 20 ऑड नंबर राइट करने थे, तो वो हमने राइट कर लिए. देन आफ्टर we have to find the sum of that numbers, so we have to write plus sign in between of these numbers. तो 1 plus 3 plus 5
+7 +9 +11 +13 +15 +17 +19 +21 +23 +25 +27 +29 and so on up to +39 तक we have to write these things as a plus form. You count these number, there is a 20 numbers na, तो counting is 20 and the difference between starting two numbers is 2, या अदर आगे के भी अगर लेंगे अदर 2 numbers भी लेंगे consecutive अदर, तो डिफरेंस आपका 2 ही होगा. तो यहाँ पर डिफरेंस आपके पास क्या हो गया 2, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2. तो वी हैव टू राइट अ फॉर्मूला काउंट नंबर जो भी आएंगे जितने नंबर आपके होंगे एंड द पावर ऑफ difference between two numbers. Okay, now you have to 20 the counting and the difference is 2, so 20 raised to the power 2, that's mean 20 into 20. now you have to got the 400. इस टाइप से आप ओनली 20 नहीं, बहुत सारे नंबर जितने भी आपके पास होते हैं सबका डिफरेंस जस्ट इन अ सेकेंड फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज 14 question is two side right angular triangle measure 7 centimeter and 24 centimeter, find the hypotenuse. In this question two sides are given, first 7, second 24. now you have to get the hypotenuse. So after for getting the hypotenuse you have to use the formula hypotenuse square is equal to first side square plus second side square. This is a formula. If you have to know these things, there is a formula first side square plus second side square. So hypotenuse is equal to under root first side square plus second side square. Now this formula is converted in the form of a answer. तो hypotenuse is equal to, you have a first side is 7, second side is 24, तो 7 square plus 24 square, that's mean under root 49 plus 570. You have to add these things, so under root 625, that answer is 25. Clear? So by this way you have hypotenuse of any triangle if the two sides are given. Clear? Now the question number 6. तो question number 6 is find the smallest 6 digit number that is a perfect square. You have to find the perfect square of 6 digit number. और तो यहाँ पर हमें एक चीज का पता है कि जो नंबर 6 डिजिट का होता है वो आपके पास सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 1 5 times 0. तो वी हैव टू राइट दिस एंड देन आफ्टर if that is a perfect square then it is have a value after getting the square root. ओके, जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा इसकी तो वो एक परफेक्ट वैल्यू देना चाहिए. बट जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको शो करके दिखाया है, मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला है आपका. तो स्क्वायर रूट की ये वे होता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए कि आप पहले डिजिट को राइट कर लीजिए और फिर बैक से दो के पेयर बनाते चले जाइए. बैक से दो के पेयर बनाते चले जाइए. तो बैक से दो के पेयर बनाए मैंने, तो 2 के पेयर बन के ये 0 10 स्टार्टिंग वाला ऐसे ही रह गया. तो फिर 3 से आपने किया डिवाइड, तो 3 3 9. नाउ यू गेट 9 एंड 10 - 9 इज इक्वल टू 1 एंड 2 0 जो बाकी के हैं वो उतार लिए. एंड आफ्टर 3 + 3 6 हो जाएगा. 1 से फिर मल्टीप्लाई करी तो 61 × 1. नाउ 61 सब्ट्रैक्ट करा 39. नेक्स्ट 2 डिजिट मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है नीचे. नाउ यू हैव टू ऐड दिस थिंग 62 हो जाए. 61 + 1 दैट इज 62 और इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 37556 एंड नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस थिंग्स. नाउ यू हैव टू गेट द 144. अब देखिए मैंने पॉइंट लगा करके यहाँ पर उसके पीछे 2 0 और बढ़ा दिए थे. तो इससे ये जस्टिफाई होता है कि ये पूरी डिजिट अभी क्रॉस नहीं हुई है. इसीलिए मैंने पॉइंट आपको शो करके 2 डिजिट एक्स्ट्रा राइट करके दिखाई हैं 0 की, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है. तो इसका रिमाइंडर जो बच जाएगा वो आपके पास 144 रिमाइंडर रह गया है. अब देखिए कमी कहाँ हुई है.
कमी इसके अंदर, अब मैं ढूंढता हूं कि भाई मुझे तो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए आपको इस प्लेस पर पूरी डिजिट चाहिए होती है। परफेक्ट स्क्वायर होने के आपको इस प्लेस पर, ये वाली प्लेस वैल्यू जो है, इस वाली प्लेस वैल्यू पर पूरी डिजिट कटनी होनी चाहिए होती। ये रिमाइंडर नहीं आता, ये वाला रिमाइंडर जो आ रहा है ये रिमाइंडर नहीं आना चाहिए था, पूरी डिजिट कट जानी चाहिए थी। तो देखिए मैंने नीचे राइट करा है कि 3900 मेरा नीचे आया है। अगर ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो इसीलिए मैंने 6 to 6 की जगह 6 to 7 लिया और उसकी 7 से मल्टीप्लाई करी तो वैल्यू आई 4389। तो 4389 जो है अगर 3900 की प्लेस पर हो तो ये कंप्लीटली स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको 627 की 7 से मल्टीप्लाई करी एंड देन आफ्टर गेट अ 4389 और देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस थिंग्स, क्योंकि हमारे पास तो 3900 ही है। तो ये सब्ट्रैक्ट करी, वैल्यू आ गई 489। अगर ये वैल्यू में आपके ऊपर वाले नंबर जो 6 डिजिट का नंबर है उसके अंदर ऐड कर दूं तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ओके, तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आप ये क्वेश्चन इस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर आपके पास आ गया 489 जो एक्स्ट्रा डिजिट है। तो 10,000 में अगर 489 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,00489। तो दिस इज योर आंसर। बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन। क्लियर? तो मैं समझता हूँ यू वेरी वेल नो अबाउट ऑल द exercise properly. Now I will meet you in the next video with the start of your exercise 3.3. आपके पास जो एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट होगी, खैर वो बहुत छोटी और स्मॉल एक्सरसाइज है, वो आपकी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, आई थिंक सो। एंड देन आफ्टर वी हैव टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.4 एंड बाय दिस फॉर्म वी हैव टू कंप्लीट योर 3 chapters. After 3 chapters we starting your 4th chapter, same है 3 and 4. तो thank you for watching this video. If this video you have to like it, if you have want to like it then you like, otherwise no. okay? अगर आपको पसंद आई है तो ही लाइक करिए, अदरवाइज नहीं। और जितना भी आपके पास क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, देन यू हैव टू आस्क मी ऑन माई WhatsApp contact number or on the YouTube comment box. I will solve you your problem. Thank you for watching this video.